Next category is linear and non-linear system. Now, सबसे पहली बात linear system क्या होता है? A linear system follow superposition theorem. What is superposition? ये हम बाद में देखेंगे. Now, superposition means combination of two laws. First law is additivity and second is homogeneity. If additivity property is true, if homogeneity is also satisfied, that means superposition is satisfied and that means the system is linear. ठीक है? So this law is necessary to prove linearity of a system. So this is the key point. Superposition है, then the system is linear. Now the second thing is very important, sometimes very useful, and that is for linearity. The condition is if the system is linear system, xt आपने दिया and yt, then the linear system must satisfy this property, which is for zero input फाइनाइट आउटपुट नहीं आना चाहिए. फॉर ज़ीरो इनपुट यू मस्ट गेट ज़ीरो आउटपुट. फॉर एग्जाम्पल, इफ द सिस्टम इज डिफाइंड लाइक दिस, वाई टी इज इक्वल्स टू एक्स टी प्लस 10. ठीक है, दैट मीन्स आउटपुट इज इक्वल्स टू एक्स टी इज इनपुट प्लस 10 और प्लस इन जनरल प्लस सम कॉन्स्टेंट. दैट मीन्स इफ इनपुट इज ज़ीरो, output is equals to some finite value. That means input is 0 but output is not 0. That means this system is non-linear. ठीक है, so this is one condition. For linearity, zero input must result in zero output. Now, superposition means addition of two properties. First is additivity. So let us first see what additivity property means. So this property says, suppose there is a system, आपने उसमें x1t input करवाया and you got y1t as output. In the same system you input some other signal yt. In the first case, the input is x1t. In the second case, the input is x2t, and you observe that the output is y2t. Now additivity. Since additivity है ना, so हम इन दोनों का एडिशन लेंगे अब. Now सिस्टम में आपने x1t प्लस x2t मीन्स इनपुट 1 प्लस इनपुट 2 दोनों इनपुट का सम इनपुट करवाया. देन अगर दोनों आउटपुट का सम रिजल्ट में आता है, दोनों इनपुट का सम इनपुट करवाया, देन दोनों आउटपुट का सम अगर आता है, देन दैट मीन्स द सिस्टम इज लीनियर. एंड दिस, इसको और बढ़ा के लिखूं, देन ax1 प्लस bx2 must result in ax1 ay1 bx2 by1 and the sum of this must result in sum of these two output. ठीक है, because x1t अगर y1 देता है, then 2x1 2y1 देगा, ax1 ay1 आपको देगा. x2t अगर y2 देता है, then bx2 आपको by2 देगा. then that means sum of this and this must result in this for linear system. ठीक है, so additivity है ना, इसलिए यहाँ पे एडिशन किया है. ठीक है ना. so आपने ax1 इनपुट करवाया एंड ay1 आपने आउटपुट में देखा, bx2 आपने इनपुट करवाया, by2 आपका आउटपुट आया.
देन इफ द सिस्टम इज if the system follows additive property, then अगर आप ax1 प्लस bx2 इनपुट करवाते हैं, देन ay1 प्लस by2 आपका आउटपुट में आना चाहिए, इफ़ ये एडिटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो। ठीक है। सो सपोज़ मैं एक सिस्टम लेता हूँ और हम देखते हैं, चेक करते हैं। So suppose example is your system is, आपने xt इनपुट करवाया, you get yt is equals to xt plus 10. The question is check for additivity. So solution किस तरह से करेंगे आप? सबसे पहले आपने सिस्टम लिया, सबसे पहले आप इस चीज़ को इस तरह से लिखना, आउटपुट इज इक्वल्स टू इनपुट प्लस 10, इस तरह से आप इसको लिखना है। ठीक है। दैट मीन्स अगर आपने सिस्टम को x1t दिया, ठीक है, देन आउटपुट सपोज मैं y1t बोलता हूँ, देन y1t और आउटपुट इज इक्वल्स टू इनपुट प्लस 10। ठीक है। सो दिस इज फर्स्ट केस। इन सेकेंड केस आपने x2t को इनपुट करवाया, देन यू गॉट y2t एंड यू गॉट आउटपुट इज इक्वल्स टू इनपुट, दैट इज x2t प्लस 10। नाउ फॉर द सेम सिस्टम आपने इस इनपुट एंड इस इनपुट का सम इनपुट करवाया, तो सपोज x1t प्लस x2t is your input to the system. Now this is input, output suppose yt मैं बोलता हूँ, now output is equals to input, that means x1t plus x2t, this is your input plus 10. ठीक है। as per the definition of system, output is equals to input plus 10, and this is not equals to y1t plus y2t. It implies non-additive कुछ नहीं होता. This means that the system does not follow additive property. ठीक है, और does not follow additivity. ठीक है. सो x1t प्लस x2t इनपुट करवाया तो y1t प्लस y2t आना चाहिए फॉर एडिटिविटी. ऐसा नहीं आया, दैट मीन्स डज नॉट फॉलो एडिटिविटी. और एक भी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, आइदर एडिटिविटी और होमोजेनिटी, दैट मीन्स सुपरपोजिशन को फॉलो नहीं करता है. एंड सुपरपोजिशन को फॉलो नहीं करता है विच इज़ नेसेसरी एज वेल एज सफिशिएंट कंडीशन फॉर द लीनियरिटी. दैट्स वाई दिस सिस्टम इज़ नॉन लीनियर सिस्टम. और मैंने आपको बताया भी था, फॉर ज़ीरो इनपुट यू आर गेटिंग द आउटपुट, फॉर ज़ीरो इनपुट यू आर गेटिंग 10 एज आउटपुट, दैट मीन्स द सिस्टम इज़ नॉन लीनियर. ठीक है. लॉ ऑफ होमोजेनिटी, what is this? Let us see. This is, suppose there is a system, उसमें आपने xt इनपुट करवाया एंड यू गॉट yt. आफ्टर yt सपोज आप इसको एम्पलीफाई करते हो k टाइम्स, दैट मीन्स द आउटपुट इज k टाइम्स yt. नाउ पहले सिस्टम में गया, पहले इनपुट सिस्टम में गया, फिर जो आउटपुट आया वो एम्पलीफायर में गया एंड दिस इज़ द फाइनल आउटपुट. नाउ अब क्या करते हैं, सपोज आप इसी सिग्नल को पहले एम्पलीफाई कर देते हैं. पहले एम्पलीफाई कर दिया, उसके बाद पहले एम्पलीफाई किया, दैट मीन्स के ब्लॉक में गया तो क्या आएगा, के एक्सटी एंड के एक्सटी अब आपको सिस्टम में देना है, सिस्टम. एंड इफ़ यू गेट सेम आउटपुट दैट इज के yt, दैट मीन्स द सिस्टम इज, अगर दोनों तरीक़ों से सेम आउटपुट आता है
and that means homogeneity is satisfied. ठीक है. So suppose we take an example, and suppose the example is yt is equals to xt whole square. Always जब भी बेसिक सिस्टम प्रॉपर्टीज़ का क्वेश्चन है, ऑलवेज राइट इन टर्म्स ऑफ, ऑलवेज राइट द सिस्टम इक्वेशन in terms of input and output. Yt is output, xt is input, that means output is equals to input square. ठीक है, लैंग्वेज फॉर्म में लिखना होता है, आउटपुट इज स्क्वायर ऑफ इनपुट. ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है. नाउ आपको लॉ ऑफ होमोजेनिटी चेक करना है फॉर दिस सिस्टम. ठीक है, दैट मीन्स सपोज आप सिग्नल को क्या करते हो, सिस्टम को आपने xt इनपुट करवाया, देन yt by the property of the system you will get x square t, and आप इसको आप k ब्लॉक में लेके जाओगे, then you will get k into this, k into x square t. so this is your final output. now अब ये जो सिग्नल है, ये जो इनपुट है, इसको पहले एम्पलीफाई करना है, फिर सिस्टम में भेजना है. तो सपोज xt is first amplified, that means the output is k into xt, and this is input to the system. Now system equation is output is equals to input square, that means input is this, इसका स्क्वायर करना है. so k xt whole square, that means k square x square t. this is k into x square t, this is k square into x square t, this is k square, that means these two are not equal. ठीक है, दोनों इक्वल नहीं है, that means this system does not follow homogeneity property. ठीक है, और एक भी प्रॉपर्टी either additivity or homogeneity is not satisfied, then that means superposition is not satisfied, which is necessary as well as sufficient condition for the linearity. And since one property is not satisfied, that's why this system can also be referred as a non-linear system. so आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, square is a non-linear operator, and a non-linear operator operating on the input, xt is your input, square operating on the input, which is a non-linear operator. that's why this system is non-linear system. Now the question is yt is equals to x of sin t. This is system equation. ठीक है, the system is this, xt is your input, yt is your output, and yt is equals to x sin of t. I told you that write the system equation in terms of words. ठीक है, write system equation in words, that means yt, which is output, is equals to sin t, means time scaled version of input. ठीक है, so this is system equation in words. now अब आपको check for linearity and non-linearity, that means आपको additivity भी check करना होगा and आपको homogeneity भी check करना होगा. so for additivity let us check. सो एडिटिविटी में क्या होता है, आपको दो फंक्शन लेने होते हैं, x1. ठीक है, आपने x1 इनपुट करवाया, देन यू विल गेट y1t विच इज़ फर्स्ट आउटपुट एज टाइम स्केल्ड वर्जन ऑफ दिस x1 साइन ऑफ t. ठीक है, सो दिस इज़ योर फर्स्ट इनपुट. नाउ सेकेंड इनपुट, सपोज x2t, you get second output which is y2t as time scaled version of x2t, x2 sin of t. now put addition of this as input, x1t plus x2t इनपुट आपने करवाया इस सिस्टम में, then by the system equation you get yt output is equals to time scaled version of input. so टाइम स्केलिंग आपको करनी है, एंड टाइम स्केलिंग किस हिसाब से,
t टेंड्स टू साइन टी। सो t टेंड्स टू साइन टी आपको करना है। सो यहाँ t की जगह साइन टी, दैट मीन्स x1 साइन टी, प्लस यहाँ भी t की जगह साइन टी, x2 साइन टी। एंड यू नोटिस दैट दिस इज y1 प्लस y2, दैट मीन्स एडिटिविटी इज सेटिस्फाइड। ठीक है, सो एडिटिविटी तो ओके है। नाउ लेट अस चेक फॉर होमोजेनिटी। Now let us check for homogeneity. The system is like this. आपने इनपुट दिया है xt, you got yt as output and yt is equals to x sin of t, and then this gets amplified and the final output is k into x sin of t. Okay, now xt is first amplified, kxt, and then put into the system. Now the output of the system is time scaled version of kxt. So yt is now time scale version, means t tends to sin t. So t tends to sin t आपको इसमें पुट करना होगा. So k x t की जगह sin t. So this is the output. That means these two output are same. That means homogeneity is also satisfied. So homogeneity is also satisfied. Additivity is also satisfied. That means this system is what type of system? This system is a linear system. So what is this? In general, what is this? Sin t or 2t or 3t or 4t और टाइम स्केलिंग. सो टाइम स्केलिंग जहाँ हो रहा है वहाँ ध्यान रखना, द सिस्टम वुड बी लीनियर. सो टाइम स्केलिंग जहाँ आएगा वो लीनियर सिस्टम होगा. ठीक है, सो दैट मीन्स टाइम स्केलिंग मीन्स लीनियर. ठीक है, तो सपोज द सिस्टम इक्वेशन इज y इज इक्वल्स टू x साइन ऑफ t, देन यू सॉ द सिस्टम इज लीनियर. Or if the equation would have been like this, the system equation is like this, then also the system would be linear, because time scaling means linearity. X of log of t, then also linear. ठीक है, तो जो भी हो रहा है वो t के ऊपर ऑपरेशन हो रहा है. t tends to 2t, t tends to log of t, t tends to sin of t, t tends to e to the power t. If the operation is on t, that means time scaling, then the system would be linear. So the first note point is linearity is independent of time scaling. That means independent of टाइम स्केलिंग. दैट मीन्स अगर सिस्टम इक्वेशन जो है वो टाइम स्केलिंग से रिलेटेड है, देन द सिस्टम इज लीनियर. ठीक है, सो द फर्स्ट कंक्लूजन इज दिस. नाउ सपोज द सिस्टम इक्वेशन इज लाइक दिस. दिस इज योर सिस्टम. yt इज इक्वल्स टू दिस फंक्शन इनटू इनपुट. दिस इज द सिस्टम इक्वेशन. That means if you input xt, then output is equals to some function, suppose sin t, into input. So I told you that write the system equation in terms of words. Output is equals to function of ft into input, and this function is sin t. ठीक है, नाउ चेक फॉर एडिटिविटी. सो एडिटिविटी के लिए चेक करते हैं. सो दिस इज सिस्टम. आपने इसमें x1t को इनपुट करवाया एंड यू गॉट sin t इनटू इनपुट. दैट मीन्स y1 इज इक्वल्स टू sin t इनटू इनपुट. इनपुट इज x1t. सो दिस इज y1. आपने x1t इनपुट करवाया, x2t, देन यू गॉट y2, and y2 is equals to sin t into input is x2t. Now
आपने सिस्टम में क्या इनपुट करवाया, सॉरी x1 प्लस x1t प्लस x2t आपने इनपुट करवाया, एंड दिस इज इनपुट. बाय द सिस्टम इक्वेशन yt आउटपुट इज इक्वल्स टू इनपुट इंटू sin t इंटू इनपुट मीन्स x1 प्लस x2t. दैट मीन्स sin t into x1 plus sin t into x2, that means y1 plus y2, that means additivity is followed. ठीक है, so additivity okay. Now check for homogeneity. To check homogeneity, system xt is input, yt is equals to sin t into input which is xt, then amplified, then the final output is k into sin t into x of t. Now reverse action. First the input is amplified, k x of t, then this is input to the system. You get, this is input. According to system equation, output is equals to sin t into input is k xt, that means k sin t xt. So this input and this input is same, that means homogeneity is also satisfied. So additivity is also satisfied, homogeneity is also satisfied, that means superposition is satisfied. And since superposition is necessary as well as sufficient condition for linearity of a system, that's why this system is linear system. ठीक है, so ध्यान रखना, if system equation is like this, मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले टाइम स्केलिंग, तब सिस्टम आपका क्या आया, लीनियर. फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ सिस्टम इक्वेशन इज आउटपुट इज इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ t, that is sin t, ये केस है ना sin t, into input. Output is equals to some function of t into input, then also the system is linear. ठीक है, so you saw yt is equals to function of t into input as linear system. तो यहाँ साइन टी की जगह चाहे log t आप कर लो, चाहे e टू द पावर t कर लो, चाहे आप, ठीक है, चाहे मॉड्यूलस ऑफ t आप कर लो. सो इफ द सिस्टम इक्वेशन इज लाइक दिस, आउटपुट इज इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ t इनटू इनपुट, देन द सिस्टम इज लीनियर. ओके, दिस इज द कंक्लूजन फ्रॉम दिस क्वेश्चन. Now the next type of systemic relationship is, suppose yt is equals to xt plus x of t minus 1. ठीक है, like this. So check for linearity. So for linearity you have to first check additivity. So let us check additivity. So that means write in words, output is equals to present इनपुट प्लस पास्ट आउटपुट, ऐसे लिख लेना आप साइड में, बाय 1 यूनिट डिले. ठीक है, नाउ आपको इस तरह से अब लिखना, सो सिस्टम, द इनपुट इज x1t, output y1t is equals to present input, that is x1t plus past input by 1 unit delay. Past input by 1 unit delay means x1 t minus 1. Now system is like this, x2t is input, the output is y2t,
and is equals to x2t plus x2t minus 1. Now the input is x1 plus x2, x1t plus x2t. This is input. Suppose the output is yt. Output is equals to input, present input, that is x1t plus x2t. This is present input plus past input by 1 unit. That means इसको शिफ्ट करना है by 1 unit. That means x1 t minus 1 plus x2 t minus 1. ठीक है. सो ये क्या होगा आपका पास्ट आउटपुट होगा. अगर ये प्रेजेंट इनपुट है तो ये पास्ट आउटपुट है बाय 1 यूनिट. ठीक है. नाउ दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू y1 and this plus this is equals to y2, and that means additivity is followed. ठीक है. So additivity is satisfied. Now check for homogeneity. Now let us check homogeneity. So this is system. Input is xt, output is yt is equals to x of t, present input, plus past input, and this gets amplified. That means the output is k times of xt plus x of t minus 1. ठीक है. Now first the input is amplified, so we get k x of t. This is input to the system. Now तो सिस्टम में इनपुट गया. नाउ एज पर सिस्टम रिलेशनशिप आउटपुट इज इक्वल्स टू इनपुट, दैट इज के एक्स टी प्रेजेंट इनपुट प्लस पास्ट इनपुट. पास्ट इनपुट मीन्स के एक्स ऑफ कितना बाई 1 यूनिट डिले, दैट मीन्स के एक्स ऑफ टी माइनस 1. ठीक है. सो दिस इज के एक्स टी प्लस के एक्स ऑफ टी माइनस 1, दैट इज same as this. So these two input are same, that's why homogeneity is also satisfied, and that means if the system relationship is like this, x of t plus x of t minus 1, that means if ये क्या है टाइम शिफ्टिंग, अगर यहाँ पे कुछ और भी कर दें आप x of t plus 1, ठीक है, x of t plus 1 भी कर दें, प्लस x of t plus 3 प्लस x t माइनस 3, इस तरह से भी अगर आप सिस्टम को डिफाइन करें. सो हो क्या रहा है, बस अगर टाइम शिफ्टिंग है, इफ ओनली टाइम शिफ्टिंग देन द सिस्टम इज लीनियर, बिकॉज एडिटिविटी इज ऑल्सो सेटिस्फाइड, homogeneity is also satisfied, and that means superposition is satisfied, and that means the system is linear. ठीक है. so टाइम शिफ्टिंग अगर टाइम शिफ्टेड अगर एक्सप्रेशंस हैं सिस्टम रिलेशनशिप में, देन द सिस्टम इज लीनियर. so that means if yt is something like x of t plus 1 minus x of t minus 1, then this type of relationship means linear system. ठीक है. बट अब इसी में ही एक और चीज़ है, वो क्या है कि आपको लगेगा दैट द डिपेंडेंसी इज लाइक दिस, x of t plus 1 and t minus 1, मीन्स आपको लगेगा दैट टाइम शिफ्टिंग का केस है. ठीक है. बट फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल ही ले लेता हूँ. फॉर एग्जाम्पल yt इज इक्वल्स टू x of t minus 1 फॉर t less than 0 and x of t plus 1 for t greater than 0. ठीक है. दैट मीन्स दिस कैन बी रिटन एज, क्योंकि टाइम डिपेंडेंसी भी है. ठीक है. t less than 0 एक कंडीशन आ गई ना, दैट मीन्स यू कैन राइट दिस एज at इंटू दिस प्लस bt इंटू दिस, at इंटू x ऑफ t minus 1 plus bt into x of t plus 1. Now at
80 मैंने x ऑफ t प्लस t माइनस 1 के साथ यूज़ किया, ठीक है। सो x ऑफ t माइनस 1 कब प्रेजेंट है, जब t लेस देन 0 है। सो 80 भी कब प्रेजेंट होना चाहिए, सो आई डिफाइन 80 लाइक दिस, 80 इज इक्वल्स टू 1 फॉर t लेस देन 0, क्योंकि x ऑफ t माइनस 1 कब प्रेजेंट है, t लेस देन 0 के लिए, एंड 80 इज इक्वल्स टू 0 फॉर t ग्रेटर देन 0। सो अगर मैंने इस तरह से डिफाइन किया सिस्टम को, देन फॉर t ग्रेटर देन 0 ऑटोमेटिकली ये पार्ट 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ ये पार्ट बचेगा। सो यही इक्वेशन रहेगी। सो सिस्टम की इक्वेशन, ये इक्वेशन सिस्टम की गिवन है, एंड दिस इक्वेशन कैन बी रिटन लाइक दिस, वेयर 80 इज डिफाइंड लाइक दिस एंड bt इज डिफाइंड लाइक, t पॉजिटिव के लिए मैं 1 ले लेता हूँ, बिकॉज bt मैंने किसके साथ लिया, x ऑफ t प्लस 1 के साथ। सो bt मस्ट बी प्रेजेंट फॉर t ग्रेटर देन 0 एंड 0 फॉर t लेस देन 0, ठीक है। सो this, in this the coefficient is 1 and minus 1, in this the coefficient is a function of time, ठीक है, the coefficient is a function of time. Now time shifting means system is linear, but time shifting के साथ साथ आप साथ में लिखना time shifting plus ft multiplication, some function of time multiplied by x function, that means input. So time scaling plus multiplication with function of time, time shifting linearity, time shifting alone means linearity, ठीक है, is satisfied. Some function multiplied by input, I mean to say yt is equals to ft into input. This type of relationship is also linear, ठीक है। Only time shifting type of relationship like this is also linear. That means this relationship including both is also linear. So ये भी क्या है, linear ही है, ठीक है। सो ये बात मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ, जब मैं आपको टाइम इनवेरिएंट एंड टाइम वेरिएंट बता दूंगा तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा दैट दिस सिस्टम इज़ टाइम इनवेरिएंट, ठीक है। सो कंक्लूजन क्या होगा कि टाइम शिफ्टिंग जब होता है तो टाइम इनवेरिएंट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे आपको लगेगा टाइम शिफ्टिंग हो रही है, ठीक है, बट एक्चुअली में हो क्या रहा है, फंक्शन ऑफ t मल्टीप्लाइड विद दिस, function of t multiplied with this, that means time shifting as well as function of t is multiplied. So जब time shifting होती है तो time invariant होता है, जब function of t की multiplication होती है तो time variant होता है। So जब दोनों हो रहा है तो क्या होगा, time variant होगा, ठीक है। So linearity में कोई दिक्कत नहीं है, linearity में चाहे यहाँ से देख लो, ठीक है, इसको ना देखो, अब भी आपको टाइम शिफ्टिंग के हिसाब से अगर आप सोचते हो तब भी लीनियर आप सोचोगे। सो गलत तरीके से भी सोच रहे हो तो भी आंसर सही आ रहा है अगर लीनियरिटी की बात हो रही है। बट अगर सेम कंक्लूजन आप टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट में लगाते हो, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। उस केस में आपको इस चीज़ को इस तरह से देखना पड़ेगा that this means xt minus 1 is multiplied by some function of t and xt plus 1 is multiplied by some function of t, and when the relationship is like a function is getting multiplied, a function of t is getting multiplied, then the system is time variant, and that's why this system is time variant. So ये linear तो है but time variant होगा because फंक्शन ऑफ t इज इन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सो यही चीज़ मैं आपको वहाँ भी रिपीट करूँगा एक बार ना, ये शॉर्टकट अप्लाई करने के लिए, ठीक है, क्योंकि हम लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम की बात कर रहे हैं। सो लेट मी टेल यू व्हाट आर नॉन लीनियर ऑपरेटर्स, ठीक है। सो नॉन लीनियर ऑपरेटर आर साइन, cos,
tan, cot and dot 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 all trigonometric functions, sin inverse, cos inverse, tan inverse, cot inverse, dot 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 all inverse trigonometric functions, then modulus, then log, then exponential, then square, cube or any power to the power n. ठीक है, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट. ठीक है, फिर उसके बाद सिग्नम फंक्शन, सिंक फंक्शन, सैम्पलिंग फंक्शन, रियल पार्ट फंक्शन, imaginary part function, conjugate of a function. If the system equation is like this, first remember that these operators are non-linear operators. ठीक है, then this means आपने सिस्टम को इनपुट कराया xt एंड आउटपुट आया आपका yt इज इक्वल्स टू नॉन लीनियर ऑपरेटर ऑपरेटिंग ऑन xt. ध्यान रखना, नॉन लीनियर ऑपरेटर ऑपरेटिंग ऑन xt, then that means system is non-linear. If non-linear operator operating on t, that means time scaling and that means system is linear. So ऑपरेट किस पे करना चाहिए? एक्स टी पे ऑपरेट करना चाहिए. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर ऑपरेटर इज अ नॉन लीनियर ऑपरेटर. दैट मीन्स इफ द सिस्टम इक्वेशन इज लाइक दिस, वाई टी input is xt, yt is equals to square of input, that means x square t, that means square of input. So square is operated on input, that means non-linear operator operating on xt, that means system is non-linear. Now if the square relationship is like this, yt is equals to x of t square, that means ये क्या है? टाइम स्केलिंग. t टेंड्स टू t स्क्वायर करा है xt में, देन यू गॉट x ऑफ t स्क्वायर. दैट मीन्स स्क्वायर ऑपरेटर ऑन t. xt पे तो ऑपरेट नहीं हुआ ना स्क्वायर. दैट मीन्स टाइम स्केलिंग इम्प्लाइज लीनियरिटी. सो अब लीनियर होगा. सो ध्यान रखना, कंडीशन क्या है? नॉन लीनियर ऑपरेटर ऑपरेटिंग ऑन xt. सो किस तरह से होगा? sin operating on xt, that means sin of xt, cos of xt, tan of xt, cot of xt, sin inverse xt, cos inverse xt, tan inverse xt, modulus of input, log of input, exponent e to the power input, square of input, cube of input, input to the power n, square root of input, cube root of input, fourth root of input, signum of input, sync of input, sampling of input, real part of input, imaginary part of input, conjugate of input, dash dash dash. So all these operator operating on input, and that is yt. If this is system relationship, then that means non-linear operator operating on xt, and that means system is non-linear. ठीक है. सो जब भी नॉन लीनियर ऑपरेटर इनपुट के ऊपर ऑपरेट करेगा और yt आएगा, देन दैट सिस्टम इज अ नॉन लीनियर सिस्टम. ठीक है. सो द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन इज दिस. सारे जो सिस्टम रिलेशनशिप है, नॉन लीनियर सिस्टम की जो भी रिलेशनशिप है, वो मोस्टली यहीं से कंप्लीट हो जाएगी. प्लस आपको एक और नॉन लीनियर सिस्टम की एक और रिलेशनशिप याद रखनी है. वो क्या है? if system is related like this, output is equals to input plus
10. ठीक है. If this is the system relationship, then also the system is non-linear. Zero input, finite output. ठीक है. So if non-linear operator operates on the input, then the system is non-linear. If there is a constant, then also the system is non-linear. If the system relationship is like this, then also the system is non-linear. उसके बाद जो बचता है वो लीनियर के केस बच जाते हैं. सो नॉन लीनियर के ये दो केसेस आपको याद रखने हैं. ठीक है. बाकी जो बचा वो लीनियर हो जाएगा. सो सपोज रिलेशनशिप इज लाइक yt is equals to under root of xt. Under root of xt means non-linear operator operating on the input. That means non-linear. Yt is equals to tan inverse of x of t minus 1. Tan inverse of x of t minus 1. So t minus 1 time shifting. But x के फंक्शन पे ये नॉन लीनियर ऑपरेटर ऑपरेट कर रहा है ना. दैट मीन्स द सिस्टम इज नॉन लीनियर. ठीक है. yt इज इक्वल्स टू सिग्नम ऑफ xt. yt is equals to e to the power xt. yt is equals to real part of xt. All these are non-linear operators. अब इसमें आपको ध्यान रखना है कौन कौन से ऑपरेटर्स नहीं हैं. एक तो इवन ऑपरेटर नहीं है, फिर उसके बाद ऑड ऑपरेटर भी नहीं है, फिर इंटीग्रेटर नहीं है. ठीक है. तो ये जो ऑपरेटर्स हैं ये आपको याद रखना है. So for example, if relationship is like this, yt is equals to minus infinity to t x tau d tau. This system equation is of a system which is linear. ठीक है. ये एडिटिविटी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगा, होमोजीनिटी को भी सेटिस्फाई करेगा, और ये आप चेक करके भी देख सकते हैं. ठीक है. बहुत सिंपल है, कुछ दिक्कत नहीं आएगी. आप खुद से भी चेक करके देख सकते हैं. सो दोनों सेटिस्फाई करेगा. दैट मीन्स इंटीग्रेटर ऑपरेटर इज़ अ लीनियर ऑपरेटर. ठीक है. फिर सपोज yt इज इक्वल्स टू इवन पार्ट ऑफ xt. दैट मीन्स x ऑफ t प्लस x ऑफ माइनस t डिवाइडेड बाई 2. सो ये क्या है? टाइम स्केलिंग और टाइम रिवर्सल, कुछ भी कह लो. ठीक है. सो टाइम स्केलिंग इंडिपेंडेंस है. जब भी टाइम स्केलिंग होता है तो लीनियर ही होता है ना सिस्टम. तो ठीक है. सो बस आपको इस तरह से ध्यान रखना है कि नॉन लीनियर ऑपरेटर ऑपरेट नहीं करना चाहिए xt के ऊपर. यहाँ xt है, यहाँ भी xt है, बस t की जगह यहाँ पे माइनस t हुआ. x के ऊपर तो कोई नॉन लीनियर ऑपरेटर नहीं आया ना. तो जब तक x के ऊपर कोई नॉन लीनियर ऑपरेटर नहीं आता और जब तक साथ में कुछ कांस्टेंट नहीं आता, तब तक सिस्टम लीनियर ही रहेगा. ठीक है. अब यहाँ पे सपोज़ मैं आप क्या कर देता हूँ, यहाँ पे इवन पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर कर देता हूँ. तो अब इवन ऑपरेटर एक्स स्क्वायर पे ऑपरेट कर रहा है. सो यहाँ एक्स स्क्वायर टी प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टी. दैट मीन्स टी की जगह माइनस टी मीन्स टाइम स्केलिंग हो गया. बट ये स्क्वायर भी तो आया ना. दैट मीन्स स्क्वायर ऑपरेटर ऑन एक्स. स्क्वायर ऑपरेटर ऑन एक्स मीन्स नॉन लीनियर ऑपरेटर ऑपरेटिंग ऑन एक्स टी. दैट मीन्स ये सिस्टम अब नॉन लीनियर हो जाता. ठीक है. तो आपको जो भी चेक करना है वो नॉन लीनियर ऑपरेटर ऑपरेटिंग ऑन एक्स फंक्शन, ये चेक करना है. और अगर नॉन लीनियर ऑपरेटर ऑपरेट कर रहा है देन दैट मीन्स द सिस्टम इज़ नॉन लीनियर. और एक और चीज़ जो मैंने बताई, इफ़ देर इज़ सम कांस्टेंट प्लस माइनस में, देन दैट ऑल्सो मीन्स द सिस्टम इज़ नॉन लीनियर. एक और चीज़ मैंने आपको क्या बताया, इफ सिस्टम इक्वेशन इज लाइक दिस, yt इज इक्वल्स टू xt और yt इज इक्वल्स टू axt लाइक दिस, मीन्स इफ आउटपुट इज ऑन दिस इज द आउटपुट एक्सेस, दिस इज इनपुट एक्सेस, yt इज इक्वल्स टू m इंटू इनपुट. दैट मीन्स सम स्लोप लाइन. सो किसी भी स्लोप की लाइन अगर है जो कि अगर ओरिजिन से पास कर रही है, ठीक है, ओरिजिन से पास करना चाहिए. सो अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इफ द सिस्टम इक्वेशन इज लाइक दिस, देन द सिस्टम इज लीनियर. सो ये थ्रू आउट आपको एक लाइन दिख रहा है, दैट मीन्स द सिस्टम इज लीनियर. बट द कंडीशन इज इट मस्ट पास थ्रू ओरिजिन. तो ओरिजिन से कब पास करता है? जब कोई कांस्टेंट नहीं होता है तब तक.
So if the system is like this, y is equals to mx plus c, तो some constant is added, y is equals to mx plus c, that means like this. So because of this plus c, ये origin से पास नहीं करेगा. y is equals to 2x सपोज है, so y is equals to 2x यहाँ से पास करेगा, ठीक है. बट y is equals to 2x plus 4, that means 2 into x plus 2 प्लस 2 मीन्स नेगेटिव शिफ्ट ऑफ 2. सो ये ज़ीरो वाला पार्ट ये -2 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये एग्जैक्टली पैरेलल लाइन आपको बनाना है, ठीक है. तो ये बिल्कुल पैरेलल लाइन बनेगी. ये कौन सा पॉइंट होगा? -2, ठीक है. सो दिस इज़ नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, दैट मीन्स ये कौन सा है? नॉन लीनियर. बट ये क्या है? लीनियर. दिस ये लाइन है, line seems linear, this is also a line, this seems linear, but as a system relationship अगर आप देखो y and x in terms of relationship, this is non-linear but this relationship is linear. Passing through origin, this is also linear, like this, like this. Passing through origin, but for negative the line is different, for positive the line is different, that means non-linear. So होना लाइन चाहिए थ्रू आउट, एक लाइन की एक ही लाइन होना चाहिए, एंड दैट मस्ट पास थ्रू origin फॉर linearity. अगर एक लाइन है एंड दैट इज़ नॉट पासिंग थ्रू origin देन non-linear. बट ये वाला जो केस है जिसमें लाइन दो लाइन है बट पासिंग थ्रू ओरिजिन, देन ऑल्सो द सिस्टम इज नॉन लीनियर, ठीक है. ये आपको दिखाई देगा. ये अगर ये -2x है प्लस 2x है, दैट मीन्स दिस इज mod 2x, y इज इक्वल्स टू mod 2x का ये है, एंड मॉड्यूलस इज अ नॉन लीनियर ऑपरेटर. ये आप इस तरह से भी देख सकते हैं. Now suppose this is plus, this is minus, grounded, and this is input xt and this is output yt. There is no positive और negative feedback, ठीक है. सो कोई फीडबैक नहीं है. ये ऑप एम्प जो है वो क्या करेगा? नॉन लीनियर जोन में ऑपरेट करेगा. नाउ इफ xt इज पॉजिटिव, ठीक है, if xt is positive then ये प्लस वी सेट पे चला जाएगा, ठीक है. क्योंकि अगर ये पॉजिटिव हुआ, ये ज़ीरो पे है, तो ये जो पॉजिटिव वाला है इनपुट, पॉजिटिव टर्मिनल इज़ एट ग्रेटर पोटेंशियल, तो ये प्लस वी सेट पे जाएगा. इफ़ xt इज़ नेगेटिव, अगर xt नेगेटिव है, ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो से कम है, सपोज -1, दैट मीन्स माइनस पोटेंशियल जो है वो बड़ा है. v माइनस इज़ एट हायर पोटेंशियल, क्योंकि ये नेगेटिव पे है प्लस पोटेंशियल, दैट मीन्स ये कहाँ जाएगा? माइनस वी सेट पे जाएगा, ठीक है. दैट मीन्स अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे, देन xt आपका यहाँ पे आया, yt आपका यहाँ पे आया, एंड फॉर इफ़ xt इज़ पॉजिटिव दैट मीन्स इधर की तरफ, देन प्लस वी सेट, xt इज़ नेगेटिव देन इस तरफ, लाइक दिस. एंड ये प्लस क्या है? वी सेट, ये क्या है? माइनस वी सेट. और इसको आप अगर लिखना चाहो तो ये +1 एंड -1 कब होता था? सिग्नम में होता था ना. दैट मीन्स यू कैन राइट yt इज इक्वल्स टू
एक्स टी कैसे लिखोगे? अगर यहाँ +1 -1 होता तो आप क्या लिखते? अगर यहाँ +1 एंड -1 होता तो आप यहाँ लिखते सिग्नम टी, 1 सिग्नम टी, अगर यहाँ +1 एंड -1 होता। बट क्योंकि यहाँ प्लस माइनस वी सेट है, दैट मीन्स वी सेट। ठीक है, सो दिस कैन बी रिटन लाइक दिस। बट सिंस दिस इज नॉट टी एक्सेस, ये वाई टी एक्सेस है, ये एक्स टी एक्सेस है। अगर ये टी एक्सेस होता तो आप सिग्नम टी लिखते, बट क्योंकि ये एक्स टी एक्सेस है तो यहाँ आपको सिग्नम ऑफ एक्स टी लिखना होगा। सो सिग्नम इज अ नॉन लीनियर ऑपरेटर ऑपरेटिंग ऑन द इनपुट। ठीक है, दैट्स वाई नॉन लीनियर रिलेशनशिप। सो ये नॉन लीनियर ऑपरेटर है ना, इस तरह से। सो ये ऑप एम्प भी तो नॉन लीनियर जोन में है ना। ठीक है, नाउ यहाँ आपका लीनियर एंड नॉन लीनियर ऑपरेटर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आपका टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट आएगा।